Hi friends, Namaskar. As we have started, these all the things for competitive examinations. Competitive examination खास करके जब CGL और दूसरे एग्जामिनेशन लाइक SSC और बैंकिंग और कई एग्जामिनेशंस को एक साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो ये सबसे हम लोगों ने पाया कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें वर्ड्स है. वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर वर्ड्स होगा तो इंग्लिश लर्निंग के जो चारों पहलू होते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट, ये चारों स्तंभ को हम लोग आसानी से कोप अप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं. तो मैंने डिसाइड किया है कि वर्ड्स और रिलेटेड टू द डिफरेंट फील्ड्स लाइक वर्ड, हियर आई हैव ब्रॉट वर्ड्स फॉर लाइफ एंड लिविंग बीइंग्स. सबका वर्ड अलग अलग करके अगर बता दिया जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. फॉर दैट आई हैव डिसाइड नाउ सी हियर कि वर्ड्स आई हैव ब्रॉट रिलेटेड टू लाइफ और लिविंग बीइंग्स, देन वर्ड रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, हिस्ट्री or chemistry, psychology, for different fields, even law. Particular words I want to bring to you. You pay attention and you will be getting the all in very precise or compact way. Only you need to pay attention to the all the things. जैसे कि आपको मालूम है word Vivo, a mobile is also there related to the same name. In Vivo means in life के अंदर, और इन विट्रो इसका ठीक उल्टा हो जाता है से आउट ऑफ लाइफ. यू माइट हैव हर्ड अबाउट IVF ट्रीटमेंट. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो IVF कॉमन वर्ड नोन टू एवरीवन. सो अगर ये हम समझ लेते हैं तो दिस विल बी इजियर फॉर अस, हमारे लिए इसको समझना आसान होगा. सो विवो यानी लाइफ से संबंधित कुछ शब्द मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ. आप देखिए पहला वर्ड है एपियोट्रॉफी. So if it is here, it means it is something negative, like political, apolitical. So in the same way, abiotrophy, I mean the loss of vitality or degeneration of certain cells or tissues, or as age advances, our tissues and cells start coming down. So when we are having some certain disease due to the all, so that is the symptom is said to be abiotrophy, like his all system failed due to abiotrophy. I mean the loss of vitality, that is bigger energy. So it happens, this is natural, ये बहुत ही natural है और ये सबके साथ होता है. So the word is common. So this word आप यहाँ पर ध्यान देंगे. So abiotrophy means a loss of vitality. In the same way, aerobic, the word is very known to us. Aerobics, you might have heard about the aerobics. Like many people do some aerobics like pranayam, yoga, walking to like have the oxygen in our body. So when intake is try to increase, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, intake of oxygen in our lungs. So that is said to be aerobic, able to live or grow on in the presence of oxygen. So we try to take more oxygen. That's why it is said to be aerobic. Like we all are aerobic. We try to grow on oxygen. If there is lack of oxygen, we can't grow. So we are aerobic. Now we see animated. Actually, everything was so dull, but his presence animated the things. Animated means to make something live. एकदम जीवंत कर देना. So animated, alive, lively और spirited. किसी के presence, किसी गाने से कोई चीज animated पे आता है, spirited पे आता है. So animated का मतलब स्पिरिटेड हो गया, लाइव और लाइवली हो गया. नाउ बायोअकॉस्टिक, यू सी टू वर्ड्स आर हियर, बायो रिलेटेड एंड अकॉस्टिक साउंड. आई मीन द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ साउंड ऑन लिविंग बीइंग्स और आवर बॉडी, व्हाट इट मेक्स an effect on our body, that we study, and that is said to be bioacoustic. Acoustic, the word related to physics, and bio known to you. So bioacoustic, two words are here. इसको बढ़िया समझने के लिए कोशिश कीजिए कि ये देखिए the study of effects of sound on our body. And now see here bioaltruism. So bioaltruism, the word is altruist. Altruist का मतलब होता है परोपकारी, और इसमें bioaltruism लिखा हुआ है. तो बायो का मतलब हो गया लिविंग, मनुष्य से है. अल्ट्रुइज्म कुछ ऐसे हमारे स्पीशीज होते हैं कि वो एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं बिना किसी कॉन्सेंट और वेलफेयर का.
So try to benefit another member of the species, कुछ दूसरे अपने मेंबर को हम कोशिश करते हैं बेनिफिट करने के लिए विदाउट एनी वेलफेयर और कंसर्न। तो वैसे स्टेप को ऑल्ट्रुइज्म कहा जाता है। नहीं बोलते बहुत ही अल्ट्रिस्ट आदमी है, बहुत परोपकारी है। सो दिस हैपेंस नेचुरली, इट हैपेंस। नाउ नेक्स्ट इज बायो एस्ट्रोनॉमी। सो बायो एस्ट्रोनॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स अदर देन द अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी के अलावा लाइफ और कहाँ कहाँ पॉसिबल है, क्या कुछ प्लैनेट के दूसरे प्लैनेट पर। सो साइंटिस्ट आर ट्राइंग देयर बेस्ट, ये कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि क्या पृथ्वी के अलावा और भी कहीं पर लाइफ पॉसिबल है। सो स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स अदर देन द अर्थ, दैट स्टेप इज सेड टू बी बायोएस्ट्रोनॉमी। नाउ द सेम इज बायोसाइडल, word known to you, the side, S-I-D, side, like suicide, genocide, fratricide, matricide। ये साइड वर्ड साइड में होता है आत्महत्या, सॉरी हत्या। तो साइड का मतलब हो गया हत्या वाले, तो अभी हो गया बायोसाइडल यानी द डिस्ट्रक्टिव ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी वेस्टेज साइड। सो बायोसाइडल दैट वेस्टेज ऑफ समथिंग। तो हमारा जब डिस्ट्रक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो उसको बायोसाइडल कहते हैं। ना बायोप्सी, बायोप्सी द वर्ड इज वेरी कॉमन। बायोप्सी यानी डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स, टिश्यूज और फ्लूइड्स व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम पर्टिकुलर डिजीज। सो डॉक्टर्स सजेस्ट अस टू गो टू बायोप्सी। बायोप्सी इज डन टू चेक whether cells, tissues or fluids are working properly or not. So this is biopsy. The word known to you, like here, biodegradable. Nowadays, many kinds of plastics are coming and running in market. Maintenance government has decided इसको बैन कर देना है, ये अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। लेकिन वे प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। कैन बी डिकम्पोज इन एटमॉस्फेयर एंड दैट इज इको फ्रेंडली। वो बहुत हमें हमारा नुकसान नहीं करता है, इसीलिए इसको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। नाउ इकोलॉजी, इकोलॉजी में द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद एनवायरनमेंट। सो व्हेन द थिंग्स आर बायोलॉजिकली और विद एनवायरनमेंट दैट इज प्रॉपर, दैट इज आल्सो सेड टू बी इको फ्रेंडली, दैट इज सेड टू बी इकोलॉजी। इकोलॉजी इसको कहते हैं। और हियर एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज एक्सपर्टाइज का मतलब होता है दोज हु लिव इन फॉरेन कंट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फॉरेन कंट्री। सो दोज हु लिव इन फॉरेन कंट्रीज, सो दे आर सेड टू बी expatriates. Now here extent, the word extent and extinct are just known to you. extent का मतलब हो गया जो अभी भी जीवित है। जैसे बोलते हैं बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत पहले थे, आज भी वो जीवित हैं, लाइक कॉकरोच एक्सटेंट, वो बहुत सालों से द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में है कि वो बहुत दिनों से आज भी है, दैट इज कॉकरोच इज एक्सटेंट। लेकिन बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आप समाप्त हो चुके हैं, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। लाइक वी कम टू नो, हमें आपको मालूम है कि डायनासोरस आर एक्सटिंक्ट। ऐसे बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर एनिमल गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। गरुड़ के बारे में बोला जाता है कि एक्सेप्ट अपने भागलपुर बिहार को छोड़ के कई जगहों में वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो एक्सटिंक्ट का उल्टा हो गया एक्सटिंक्ट यानी लुप्त प्राय, एक्सटिंक्ट, और हो गया एक्सटेंट यानी अभी भी जो जिंदा है। तो जीवित को बोलते हैं एक्सटेंट। आप देखिए जियो बायोन, जियो यानी पृथ्वी मालूम है, और बायोन इसका मतलब कि प्लांट्स ऑन ड्राई लैंड, पृथ्वी पर खास करके ड्राई लैंड पर जो प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं जियो बायोन। जियो बायोन लाइक कैक्टस और ड्राई लैंड पर होते हैं, इसीलिए बॉटनी पढ़ाने में उसको बोलते हैं कि दिस इज प्लांट ऑफ जेरोफाइट ग्रुप्स के प्लांट्स को बोलते हैं जियो बायोन। उस तरह से हेलोबाइस लिविंग इन marshy lands like crocodile, they can also live in marshes. marshes का मतलब हो गया दलदली, तो दलदल वाली जमीन पर भी जो एनिमल रह सकते हैं उसको बोलते हैं हेलोबाइस। हेलोबाइस मींस दैट crocodile, the हेलोबियन on dry land, हेलोबाइस on marshy land. Now here let the
ब्रिकॉल, लेफ्टी ब्रिकॉल का मतलब हो गया लिविंग इन होल, जो कि होल्स में रहते हैं। बहुत ऐसे एनिमल्स हैं, रोडेंट्स, मोल, रैट्स, स्नेक्स, ये सारे रहते हैं होल्स में, तो इसको बोलते हैं लेफ्टी ब्रिकॉल, इसको बोला जाता है। नाउ लिम्नोबायंट, लिविंग इन फ्रेश वाटर में जो रहते हैं उसको लिम्नोबायंट कहते हैं। बायो से समझिए, BIO से समझिए कि बायो का मतलब लिविंग, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में होता है उसको बोलते हैं लिम्नोबायंट। एंड नाउ हियर पेट्रोबायंट, पेट्रो का मतलब हो गया स्टोन, जो स्टोन्स और रॉक्स के बीच में रहते हैं, अमंग स्टोन्स एंड रॉक्स, तो इसको बोलते हैं पेट्रोबायंट। ये पेट्रो से समझा जा सकता है, बायंट। इस तरह से दो शब्दों को मिलाकर के बने हुए हैं। ये समझने की जरूरी है कि इसको जानिए। लाइक photo and biology, it means the effect of light on human beings or living organisms. The effect of light on living organisms, on living being. तो मनुष्य के ऊपर लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, स्टडी ऑफ दैट इज said to be photobiology. And now here semnobiont, you see here semnobiont, biont or biontic, semnobiont or biontic, इसका मतलब है लिविंग इन सैंड, जो बालू में रहते हैं। लाइक बहुत सारे एनिमल हैं कि बालू में आसानी से रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं आसानी से, कैमल्स, so it's said to be semnobiontic or semnobiont. Now here seprobiont, you see here sepro, dead, so decaying, जो डेड और डिकेइंग एनिमल से उसके ऊपर उसको खा करके पी करके जो रह जाते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोबायंट, लिविंग ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नाउ थैम्नोबायंट, सो थैम्नोबायंट अगेन, थैम्नो आई मीन ऐसे प्लांट्स, बुशेस, झाड़ियां जिसके बीच में रहते हैं, तो वैसे एनिमल जो बुशेस और श्रब्स के बीच में रहते हैं उसको बोलते हैं थैम्नोबायंट। इन द सेम वे Now troglobiont, living in caves, जो गुफाओं के अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं troglobiont. Troglobiont, another word is there, a person who tries to live, ये कई बार पर्सन के लिए प्रयोग होता है कि जो व्यक्ति रिक्लूस होता है, अलग थलग रहना चाहता है, उसको भी ट्रॉग्लोबायंट लोग बोल देते हैं। But these all are related to living organisms. I think you might have had some benefit, इसका कुछ आपको फायदा जरूर हुआ होगा। आप इसके ऊपर फिर से एक बार ध्यान देंगे, सो दिस विल बी बेनिफिशियल और इसका समझना भी आपके लिए आसान होगा। दिस इज ऑल अबाउट 4 more words I try to simplify the job, उसको और सरल भाषा में ला करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।